A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the theoretical concept related to the first chapter of the volume 2, that is in company's account issue of share. In the whole chapter, firstly we discussed what is the meaning of company, what are the types of the company, what are the feature of the company, as well as the difference between the private company and public company. And we also discussed about the concept of share, types of the share, and the difference between the equity share and the preference share, and also discussed about the very important topic, that is in types of share capital and the concept of share capital. So in this video, let's we discuss the concept of share capital and the kinds of the share capital in detail. And in the last video, we only discussed about the concept of share capital, and you know very well if we are talking about the kinds of share capital, so there are basically few types of the share capital. The first type of the share capital is authorized share capital, and authorized share capital means शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो हम रजिस्टर्ड कराते हैं विद द कंपनीज एक्ट 2013, यानी एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जिस कैपिटल से कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. इट इज आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल as well as nominal share capital as well as the maximum share capital of any company. The second type of the share capital is issued share capital. Issued share capital means the part of the authorized share capital, share capital which are issued to the public for subscription will be known as an issued share capital. And the third type of the share capital will be subscribed share capital. What do you mean by subscribed share capital? Subscribed share capital is a part of the issued share capital, which are issued to public for subscription. जैसे कंपनी क्या करती है, इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए. And there are basically two types of the subscribed share capital: subscribed and fully paid up. And number second, subscribed and not fully paid up. Okay, इसको हम लोग भी डिटेल में समझेंगे. सपोज कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और एक शेयर है 10 रुपए का. कंपनी ने अपने आप को कंपनीज एक्ट में इसी शेयर कैपिटल से रजिस्टर कराया. एंड यू नो वेरी वेल, कंपनी सारा शेयर पब्लिक में इशू नहीं करती. वो क्या कर सकती है, इसमें से कुछ शेयर, मान लीजिए 90,000 शेयर क्या किया उसने, इशू किया पब्लिक को 10 रुपए. So the 90,000 share at the rate of 10 will be known as an issued share capital. अब सब्सक्राइब की बात करते हैं. आपको पता है कि अगर कंपनी ने 90,000 शेयर मार्केट में इशू किया है तो बहुत ही रेयर केस होता है कि कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाएं. हाँ, एक्सेप्शनली जिन कंपनीज का गुडविल बहुत अच्छा होता है मार्केट में, कंपनीज की गुडविल मतलब कंपनीज की गुडविल मार्केट में सबसे अच्छी होती है, उनके साथ सबसे पहला प्लस बेनिफिट ये होता है कि उनके शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, और जिनके शेयर कम सब्सक्राइब होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन. सो दो कंडीशन यहां समझ में आई, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने 90,000 शेयर इशू किया और 90,000 से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब हो गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन. 90,000 से कम शेयर सब्सक्राइब हुए तो अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आता है. तो यहाँ दो छोटी सी बात और समझ में आई कि यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन
और ओवर सब्सक्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? कंपनी ने इशू किया 90,000 शेयर, अगर 90,000 शेयर से कम सब्सक्राइब होंगे, कम शेयर बिकेंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे, और अगर अपोजिट 90,000 शेयर कंपनी ने इशू किए और 90,000 से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब हो गए तो उसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी के 90,000 की जगह 75,000 शेयर क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। अब आपको पता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, ऑल आर नॉट गुड, ऑल आर नॉट अ गुड शेयर होल्डर। व्हाई? यानी जरूरी नहीं कि सारे शेयर होल्डर पूरा का पूरा पैसा दे ही दे। तो जो शेयर होल्डर पूरा पैसा दे देता है, मान लीजिए 75,000 शेयर में से 55 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिस पे कंपनी को पूरा पैसा मिल जाए या कंपनी ने पूरा शेयर ले लिया, तो उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड। और जिन शेयर पे कंपनी ने या तो पूरा पैसा नहीं मांगा है या तो शेयर होल्डर ने पूरा पैसा नहीं दिया, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। कंपनी ने क्या किया, 75 में से 55,000 शेयर होल्डर्स से पूरा पैसा मांग लिया, या 55,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा कंपनी को दे दिया, तो विच इज नोन एज सब्सक्राइब एंड फुली पेड। और जिन शेयर पे कंपनी पूरा पैसा नहीं मांगती या शेयर होल्डर पूरा पैसा नहीं देते, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, सब्सक्राइब एंड नॉन फुली पेड। तो ये जो दो कैटेगरी बनती है अंडर द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनीज एज वेल एज ऑन द शेयर होल्डर। पूरा पैसा कंपनी ने मांगा और पूरा पैसा मिल गया तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड की कैटेगरी में रहेंगे, और अगर कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर से, कंपनी ने नहीं मांगा ड्यू टू एनी रीजन, पूरा पैसा नहीं मिला, ये मेन पॉइंट है, उस बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे सब्सक्राइब फुली पेड एंड सब्सक्राइब नॉट फुली पेड। सो यहां तक आपको मैंने वीडियोस में बताया था। इसके बाद होता है जो अदर टाइप ऑफ द शेयर कैपिटल होते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी क्या करती है, कहती है कि मुझे इस पे पैसा दो। जैसे कंपनी के सब्सक्राइब हुए 75,000 शेयर और कंपनी ने कहा कि यू विल पे द 70,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। मतलब कंपनी ने डिमांड किया कि आप सिर्फ 70,000 शेयर पे क्या करें, पैसा दें। अब ये 5,000 शेयर पे पैसा नहीं मांगेंगे, सो विच इज नोन एज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। एंड आफ्टर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल द नेक्स्ट टाइप ऑफ द शेयर कैपिटल इज पेड अप शेयर कैपिटल, जो आपके कोर्स में है। यस, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, part of the called up share capital on which shareholder paid the amount due to the company। यानी 70,000 शेयर में से मान लीजिए शेयर होल्डर ने 65,000 शेयर के 10 रुपए दे दिया, तो विच इज नोन एज पेड अप शेयर कैपिटल। और जितना नहीं मिला उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। आप इससे भी समझ लीजिए 75,000 में से कंपनी ने 70,000 में पैसा मांगा, जिससे 65,000 पे पे हो गया, तो 65,000 पे पे हो गया, तो 65,000 किस कैटेगरी में लिखा जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। और 5,000 जिस पे कंपनी को पैसा नहीं मिला उसे क्या लिखा जाएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड पे कैटेगराइज किया जाएगा। एक भी रुपया नहीं मिला, जैसे 10 रुपए है तो कंपनी ऐसा नहीं पूरे 10 रुपए बिलीव रखती है, कंपनी फोकस ऑन each and every rupees recovered from the shareholder। ठीक है, तो वो इस बात पे बिलीव रखती है कि आपसे पूरा का पूरा पैसा ना मिले, लेकिन एक एक रुपए पे हिसाब रखती है। मतलब अगर आपने 10 रुपए में 9 रुपए भी दिया है तो भी वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगी तो यू विल डिस्कस इन द क्लास, ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिजर्व कैपिटल। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है एनी कैपिटल विच आर नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड दिस अमाउंट विल बी कॉल्ड अप टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। यानी बेसिकली
नाम से क्लियर है, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल का वो पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल जिसे कंपनी अभी नहीं मांगी, जिसे कंपनी कब मांगेगी, एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन। कैसे देखिएगा, कंपनी ने सब्सक्राइब कितना हुआ था 75,000 और कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया, सिर्फ 70,000 शेयर कॉल्ड अप किया। अभी 5,000 शेयर पे तो उसने पैसा ही नहीं मांगा ही नहीं है। यहां देखिए आप खुद आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर 75 में से 70 मांगा, जिसमें 65 में मिला, 5 पे नहीं मिला। जो पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ये भी याद रख लीजिए आपको एक पॉइंट और, कॉल्स इन एरियर। What is calls in area? The difference between the called up share capital and paid up share capital. Called up के 70,000 शेयर, मिला 65,000 शेयर, तो जो 5,000 के शेयर में पैसा नहीं मिला उसने calls in area कहेंगे। और रिजर्व कैपिटल किसे कहेंगे, पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब शायद आपको क्लियर होगा, पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल which are not called up by the company, and this amount will be called up by the company at the time of the dissolution or liquidation of the company. यानी कंपनी ने 75,000 शेयर में से सिर्फ 70,000 शेयर होल्डर से पैसा मांगा है, अभी भी 5,000 शेयर पे कंपनी ने पैसा नहीं मांगा है। यही जो 5,000 शेयर पैसा है, कंपनी उसको क्या करना चाहती है, रिजर्व में रखना चाहती है। कंपनी सोच रही है उससे पैसा अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। क्लियर हुआ? सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द kinds of the different type of the share capital. So please note down. Okay, so you can see that the different type of the share capital, that is an authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, and the types of the subscribed share capital will be a subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up, as well as the called up share capital, paid up share capital, and the reserve capital. And also we discuss about the 3 other terms, that is an under subscription, over subscription, and cause in aid. So now let's move to the next topic, that is in capital reserve. Okay, so please, what do you mean by capital reserve? Basically, there is a conflict between the reserve capital and capital reserve, and most of the practical examination, like a Viva, examiner asked about the concept of the capital reserve, and in the class 11th you know very well about the capital reserve. So capital reserve और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल पहले हम लोग रिजर्व कैपिटल पे डिस्कस करते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, यू नो वेरी वेल। रिजर्व कैपिटल इज अ रिजर्व। रिजर्व कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ subscribed share capital. Reserve capital is a portion of the subscribed share capital which shall not be called up except in the event of liquidation or winding up. So I hope एक लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी हम लोगों ने जो रिजर्व कैपिटल पढ़ा, which is part of the share capital, the portion of the subscribed share capital, subscribed share capital का वो portion which shall not be called, जिसे अभी मांगा नहीं गया है, एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। इसे कब मांगा जाएगा, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। वाइंडिंग अप का मतलब आपको पता है क्या होता है, यस, जब कंपनी डिसॉल्व होती है, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप बंद होती है ना, डिसॉल्व होती है, उसी तरह से कंपनी का भी एक टाइम होता है कि कंपनी को हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। एंड
कैपिटल रिजर्व आपने 11 में बेसिक मीनिंग पढ़ा है, रिजर्व which is created out of capital profit। वो रिजर्व जिसे हम क्रिएट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट से। 11 में पढ़ा है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व is created out of the revenue profit, whereas a capital reserve is created out of the capital profit। Okay, so reserve which is created out of capital profit will be known as a capital reserve, and opposite side we can say that reserve capital means the portion of the subscribed share capital which shall not be called up except in the event of the wind up। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, आप बुक पे उठा के देख लेना, उसमें कई डिफरेंसेस दिए हैं। वैसे बेसिकली 6 differences are given with the basis of differentiation। लेकिन बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, वर्ड की ऑर्डर चेंज होने से मतलब पूरी तरह से चेंज हो रहा है। कैपिटल रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और रिजर्व कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसे कंपनी कॉल्ड अप नहीं करती है। कंपनी उस पैसे को कब कॉल्ड अप करती है, एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। अब हम लोग चलते हैं द फ्यू इंपॉर्टेंट theoretical point related to this chapter, that is an issue of share। So the next जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is an issue of share, it is a very important topic for the practical portion as well। Okay, so practical portion में भी हम लोग उस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसलिए this topic is very important for us। Issue of share। When we are talking about the issue of shares, so you know very well, share may be issued, share may be issued in any of the following ways। मतलब शेयर को हम इशू कर सकते हैं, जो भी हम फॉलोइंग बेस बताएंगे उसमें से किसी एक वे के तरह से हम इशू कर सकते हैं। इशू मतलब अभी आपने पढ़ा सब्सक्राइब, एथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। तो एथोराइज के बाद कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है टू द पब्लिक। तो जब पब्लिक को इशू करती है तो इशू करने के कई वे होते हैं। वे मतलब तरीके, मेथड्स, कई मेथड्स की तरह से कंपनी इसको इशू कर सकती है। पहला है फॉर कैश एंड सेकंड है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब एक तरह से कंपनी शेयर इशू कर रही है और उसके बदले कंपनी को क्या मिलेगा, कैश, बैंक अमाउंट मिलेगा, लिक्विड मनी मिलेगी। और दूसरा क्या होता है, कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो कंपनी को कैश नहीं मिलेगा, कैश के अलावा और कुछ भी मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है, बिल्डिंग मिल सकती है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कंपनी अपने शेयर को इशू करती है और अपने मोटिव को सेटिस्फाई करती है। अब जब कंपनी शेयर इशू करती है फॉर कैश के लिए तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर या आपको बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ना है, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस ये करेंगे सर व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड व्हाट इज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कई तरह के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लाइक एन ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कई लोग पूछा भी है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। सो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मींस
शेयर इशू करने का वो तरीका जिसमें हम शेयर इशू करते हैं कैश पे, लेकिन किसको इशू करते हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो उसको आपको पहले से थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 a company may issue share on private placement basis also, and in this situation company does not invite the public to subscribe for its shares but make private placement of share to promoters, या फिर आप कह सकते हैं प्रमोटर्स को, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और specific organization like LIC, GIC, UTI, ICICI, etc. So this is the basic meaning of the private placement of share, यानी कंपनी शेयर इशू करना है, कंपनी को शेयर इशू करना है। सो इट इज एन ऑप्शन कि कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट करा ले शेयर का, या तो पब्लिक में इशू कर दे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मतलब होल पब्लिक को, यानी जनता को शेयर इशू करना, और जनता को अगर उस कंपनी पे विश्वास है तो कंपनी पब्लिक क्या करेगी, उसके कंपनी के शेयर को परचेस करेगी और कंपनी को पैसा देगी। कंपनी उस पैसे से बिजनेस करेगा और कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, जितना शेयर लगाया, खरीदा है, उस बेसिस पे उसको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। अपोजिट टर्म में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती सब्सक्रिप्शन के लिए, बल्कि प्राइवेट प्लेसमेंट कर देती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा कि शेयर इशू हुआ है, और इस सिचुएशन में कंपनी करती क्या है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को शेयर इशू करती है। मतलब सब लोग इन जनरल शेयर इशू नहीं कर सकते या शेयर को खरीद नहीं सकते, ठीक है, शेयर को खरीद नहीं सकते। बेसिकली इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, प्रमोटर्स को, यानी जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है उनको, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, म्यूचुअल फंड्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड ICICI, आपको पता होगा नहीं, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को शेयर इशू कर देती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। एंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है और पब्लिक उस शेयर को परचेस करती है। The next theoretical point of this chapter is sweat equity share। इसको भी आप लिख लीजिए ध्यान से, sweat equity share क्या होता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट theoretical point है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। और आपने ये तो जाने कि कंपनी दो तरह से शेयर इशू कर सकती है, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। और कंपनी फॉर कैश में दो तरह से शेयर इशू करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया, और पब्लिक हो गया वो समझ लिया। अब हम लोग ये जो टॉपिक है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
And now let's move to the next topic, that is in sweat equity share. What is the meaning of sweat equity share? 11th में आपने इक्विटी शेयर पढ़ा होगा. प्रेफरेंस शेयर के कई टाइप्स पढ़े होंगे, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, पार्टिसिपेबल, नॉन पार्टिसिपेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल. So there are lots of the types of the preference share. But equity share का कोई टाइप्स नहीं सुना होगा. यहाँ क्लास 12 में आकर आपने इक्विटी शेयर का एक टाइप देखा, स्वेट इक्विटी शेयर. What is sweat equity share? So as per the section 54 of Companies Act 2013, sweat equity share means equity share. It means equity share issued by the company to its employee or director at a discount. And lock-in period of such share will be of 3 years. अब मैं इसको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ. व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर इज अ टाइप ऑफ द इक्विटी शेयर which are issued by the company to its employee or director. यानी इस तरह के शेयर को कंपनी किसको इशू करती है? अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर को, और वो भी डिस्काउंट पे इशू करती है. अगर मार्केट में उसका शेयर का वैल्यू 100 रुपए, 200 रुपए, तो कंपनी उसे 100 या 200 रुपए में अपने डायरेक्टर एम्प्लॉइज को नहीं देगी, उससे कम पे देगी. लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे लॉक इन पीरियड की बात अगर हम लोग करें, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर उस शेयर को, शेयर होल्डर कैन नॉट सोल्ड such share before the 3 years. मतलब अगर हमने आज उस शेयर को परचेस किया तो 3 साल तक उस शेयर को सोल्ड नहीं कर सकते. होता क्या है बेसिकली, ये रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि सपोज अगर आपने कोई आज एक शेयर खरीद लिया, 100 रुपए का शेयर 90 रुपए खरीद लिया, क्योंकि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या डायरेक्टर हैं, तो आपको स्वेट इक्विटी शेयर मिलेगा. ठीक है. अब आपने इमीडिएटली उसको सोल्ड आउट कर दिया, तो अगर 100 रुपए का शेयर अगर आपको कंपनी ने 80 रुपीज में दिया है, तो आपने पर शेयर 20 रुपीज क्या कर लिया, गेन कर लिया. तो ये एक तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है. इसलिए कंपनी ने इसमें एक लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर आप कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम कंपनी के शेयर को 3 साल तक रखे रहना होगा. ये बात ध्यान रखिए. और मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि जब कोविड सिचुएशन हमारे इंडिया में चल रही है, तो उसमें कई कंपनीज ने ये तरीका निकाला है जिससे वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं. इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर कंपनी इज अनेबल टू पे अ सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय, तो वो क्या करती है कि एम्प्लॉयज को सैलरी न देकर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इस कंपनी का शेयर दे देती है. जैसे अगर किसी एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 है, तो 50,000 में से मान लीजिए उसको 20,000 दे दिया, 30,000 का उसको कंपनी का शेयर दे दिया. और जो 30,000 का शेयर है, मान लीजिए मार्केट में उस शेयर की वैल्यू 50,000 है, तो उसको 30,000 में ही शेयर दे दिया. लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी कि आप 3 साल तक वो शेयर नहीं बेच सकते. ठीक है, क्योंकि आप अगर इमीडिएटली बेचोगे तो कंपनी की वेल्थ भी डाउन होगी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और बैड इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग करेंगे, इसलिए तो सब खरीदने लगे. तो ये जो स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली काफी हेल्पफुल है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के केसेस में. ओके. इसके अलावा भी कई टॉपिक्स हमें और भी पढ़ने हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, ये टॉपिक बचा हुआ है. इसे क्या कहते हैं, ये भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग भी डिस्कस करना है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो पहले आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए. So in today's video, firstly we discussed lots of the types of the share capital, that is the authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, and the types of the subscribed, fully paid up, subscribed not fully paid up, called up share capital, and paid up share capital.
and also the reserve capital, and the difference between the reserve capital and capital reserve, and also the other terms that is under subscription. अगर शेयर इशू किया, उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया, उससे ज़्यादा शेयर लोगों ने खरीदने के लिए डिमांड कर दिया तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, कम शेयर के लिए डिमांड आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। पॉलिसी नेम में मतलब द डिफरेंस बिटवीन द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी ने 50,000 शेयर पे 10 रुपीज मांगा, लेकिन शेयर होल्डर ने 50,000 शेयर पे तो 45,000 शेयर पे पूरा पैसा मिला, 5,000 पे नहीं मिला। तो जो 5,000 शेयर पे पूरा पैसा नहीं मिलता, जितना नहीं मिलता विच इज नोन एज एन कॉल सेलिंग एरिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द इशू ऑफ शेयर, एंड यू कैन सी दैट शेयर मे बी इशूड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन एज वेल कैश। एंड फॉर कैश देयर आर टू बेसिक टेक्निक, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट आपने देखा कि कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, किसी प्राइवेट क्लाइंट्स को, प्रमोटर्स को, फ्रेंड्स को, म्यूचुअल फंड्स को इशू कर देती है शेयर और फंड अरेंज करती है। और स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है डिस्काउंट पे 3 साल का लॉक इन पीरियड के साथ। और इसमें और भी कई सारे कंडीशन होते हैं कि शेयर इशू करने के लिए कंपनी क्या करती है, नो हाउ का यूज करती है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉइज या डायरेक्टर के पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स है लाइक नो हाउ, कोई स्पेशल राइट्स है, तो उस राइट्स को खरीदने के लिए क्या करती है कंपनी, इस तरह के शेयर इशू करती है। सो आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द टॉपिक्स and all the things very easy. Apart from this, if you have any doubt or solution regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही, thank you, take care and goodbye. And I request to each and every student, please make a proper notes on your copy properly, and I hope कि आप सब सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करें। बाय बाय।